One step at a time, I find my way through valleys of flowers, fresh mountain showers. With magical powers, I find my way. One step at a time, I walk my path in trust and surrender to sunshine and thunder. With eyes full of wonder, I walk my path. One step at a time, I find my way. One step at a time, I find my way. Good morning. I am at Chateau Garli in Garli Village. Well, आज का प्रोग्राम ऐसा है कि मैं आज आपको गार्ली घुमाऊंगी, उसके बाद मसरूर टेम्पल ले चलूंगी और वहां से हम जाएंगे कांगड़ा फोर्ट. So let's begin our day. Wow, this would be lovely in summer. But I can challenge anybody to get in there in winter. Nice and cool. Such cute things. These are all used by our forefathers, so everything is authentic. इस होटल का खाना तो बहुत ही टेस्टी है, लेकिन हिमाचल की एक लोकल डिश है और वो एक स्पेशलिटी दाल है जिसे कहते हैं धाम. वो तो आपको जरूर खाना है. So this place is owned by Mr. Yatish Sood. This was built by his great grandfather in 1921 और उसके बाद उसे रिस्टोर करके होटल बनाया गया. Oh, lovely. Look at this bed. Nice. Very interesting. What a wonderful stay I've had. I feel very girly and garly. Well, actually, I feel like a queen in this beautiful heritage property. Off for some more adventure. Hey, I see brinjal. Thank you. Alright. क्या आपकी मच्छियाँ रोटी खाती है? अरे वाह. आएगी? Hi, breakfast time for you. How cute is that? आज मैंने ब्रेकफास्ट खाया और मच्छी को भी खिलाया. अब जा रही हूँ गार्ली विलेज देखने अपने तरीके से, चीता स्टाइल. तो सबसे पहले चलते हैं ये एक घर देखने जो 100 साल से भी ज्यादा पुराना है. देवराज जी बताइए मुझे इस जगह के बारे में. ये बिल्डिंग 100 साल से पुरानी है. अच्छा. उस टाइम बिजली और वेल्डिंग से थी. ये जितनी भी बिल्डिंग बनी हुई है लकड़ी और क्लिप करके बनाई हुई है. इसमें कितने कमरे होंगे? 40 के करीब. 40 कमरे का ये घर है. वाह, अच्छे से ओम लगाया है. बहुत बढ़िया. वेरी ब्यूटीफुल. वेंटिलेशन भी हो गया. हाँ,
हाँ गैलरी में। और उसमें पूरा वो कार्विंग किया हुआ है वुड पर ना। इतनी पीसफुल जगह है ये, इतनी शांति है यहाँ पर। I'm like going back in history. Maybe पिछले जन्म पर मैं यहाँ रहती थी. I think so. This could have been my house in my last birth. Wow. Look at this place. So we are here and we are meeting Mr. Lal. Mr. Atul Lal, who's the owner of this beautiful property, and we're going to talk to him about this place. So we made this. He sat down, sketched each and every building, and finally made this map. Beautiful. But this makes so much sense. All right. Wonderful. And the whole idea was that this is the heritage. Right. You know, this is the physical heritage of the village. So if people have to come here, they must know what to see and what to do. What to do, right? So this was step one. मिस्टर लाल ने बताया कि एक डचमैन ने आकर के यहाँ गार्ली का मैप बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाया है. ओके. Thomas हाय. and Ishita. मिस्टर लाल ने मुझे थॉमस और इशिता से मिलवाया. दिस वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग मीट बिकॉज ये लोग यहाँ पर एक बढ़िया काम कर रहे हैं. गांव का एक तालाब है जहाँ पहले औरतें कपड़े धोया करती थी, बैठकर गपशप लगाया करती थी, बच्चे खेलते थे. पर अब सबके घरों में पानी आ गया है तो कोई वहाँ जाता नहीं. तो ये बड़ा सुनसान सा हो गया है. And these people are trying to energize this pond, and they're trying to do it in a scientific way, and they are making it such that लोग वापस यहाँ से आए और यहाँ की जो पहले की हरियाली थी वो वापस लौट आए और बनी रहे. So we are talking to Mrs. Geera Lal, who has started this whole beautiful project of empowering the village ladies, and they make all these lovely products which are also on sale in another center. But this is what we get to see, which is the place of production. And all the material is got from the local people. Hello? Koi hai? You just see these beautiful patchwork pieces that they have made. Absolutely amazing. चलो शॉपिंग किया जाए. यहाँ की औरतें इतनी सुंदर चीजें बनाती है कि बस कंट्रोल ही नहीं होता. मैंने तो यहाँ सब दोस्तों के लिए जो खरीदना था यहीं से ले लिया. एक तरह से उनका encouragement भी हो गया. I'm sure you will also be able to do the same when you visit. ये जगह की खासियत लगती है शांति एंड सफाई. जहां भी देखो इतना पीसफुल है. ये गेस्ट हाउस देखिए, ये स्कूल देखिए. और जगह जगह पर इतने सुंदर मैसेजेस लिखे हैं. सही से पढ़कर ऐसे लगता है दे आर सो राइट. घर में रौनक पैसों से नहीं, रहने वालों से होती है.
Wonderful. समझे? Lovely, most interesting morning I've had. चलिए नेक्स्ट एडवेंचर पर. शर्मा पंजाबी ढाबा. Oh, the cricketers have come here. Got to eat here. Hi. Did you eat here? Where's your travel You company? eat vegetarian or non-vegetarian? You like vegetarian? नमस्ते भैया. तो आप ही हैं शर्मा जी? यस यस आपके यहाँ बड़े सेलिब्रिटीज आए, सबके फोटोज देख रहे हैं सब जगह पर. मैं भी यहाँ पर कम से कम 40 साल से काम करता हूँ. तो आप खुद बनाते हैं खुद सब? बनाता हूँ, खिलाता भी हूँ. अरे वाह, खिलाता भी हूँ, खिलाने वालों को भी थोड़ा मजा लुत्फ दिलाता हूँ. नाइस. तो हमारे बारे में जब धोनी को पता लगा, हाँ. धर्मशाला में खेलने आए थे, अच्छा, तो वो भी टीम लेकर यहाँ पर आए. 40 पूरी पूरी टीम आई पूरी थी? टीम आई थी. 65 लोग थे, 6 गाड़ी साहब ने सिक्योरिटी की थी. I am good to eat food धोनी where all बहुत the खुश cricket हुआ team था. has eaten. धोनी बहुत खुश हुआ था हमारा खाना खाकर. उसने उस साल मेरे पास कम से कम 7 दिन का, मतलब ज़्यादा क्या बोलूँ, 1 लाख के करीब रोटी खा कर गया था. 1 लाख? एक रोटी खा कर गया था. जब उनको पता लगा यहाँ जब घूमने आए, हाँ. तो जो लोग बोला कि जहाँ धोनी ने रोटी खाई वहीं खाएंगे हम. हाँ तो सब लोग बोल रहे हैं, मैं भी वही बोल रही थी. तो ऐसा है कि मैं भी 40 साल से यहाँ पर काम कर रहा हूँ. बड़े लोगों से मिलता हूँ, खाना खिलाता हूँ. जब तक मुझे तसल्ली नहीं आती तब तक मुझे नहीं आता. वेरी नाइस. आज आपको भी ऐसे ही खाना खिलाऊंगा. और आप कुछ बता रहे थे यहाँ स्टेडियम बना हुआ हाँ, है? स्टेडियम जो है ये मतलब धर्मशाला का जो स्टेडियम है ये अब इंटरनेशनल स्टेडियम हो चुका है. हाँ. ये पहाड़ों की छटाओं के बीच में बना हुआ स्टेडियम है. इसको जब आप देखोगे तो आपको ऑस्ट्रेलिया नजर आएगा, मेलबर्न नजर आएगा, सिडनी नजर आएगा. वाह, इसकी जो मतलब खूबसूरती है वो पूरे वर्ल्ड में वंडरफुल वंडरफुल. तो इसलिए आज हमारा हम ये जो धर्मशाला से बहुत ही मतलब फेमस हो गया स्ट्रॉन्ग बनने से. और बहुत पर्यटक लोग आते हैं यहाँ पर. साथ में मेट्रो भी है हाँ. यहाँ पर. हमारा पर्यटक स्थल है. लोग 2 काम करते हैं, एक तो घूमते हैं, मतलब मैच देखते हैं और हाँ, साथ तो में हम तो वो सब भी देखने वाले हैं. हाँ जी. पर आज बताएं आप क्या खिलाने वाले हैं हमको? आज मैं आपको पूरी टांगी दूँगा. इसमें आपको चावल मिलेगा, एक दाल मिलेगा, एक यहाँ पर कड़ी मिलती है, बनती है पकौड़े वाली, हाँ. वो खिलाऊंगा. 2 सब्जियाँ खिलाऊंगा साथ में. आलू गोभी की सब्जी है, तो एक राजमा बने, यहाँ पे चंबा का राजमा बनता है. हाँ, मैं अभी बोल रही थी मुझे राजमा खाना है. चंबा का राजमा बनाना है, अच्छा. बस वो खिलाऊंगा. चंबा का राजमा. हाँ यस, बहुत फेमस राजमा वो वो. क्या अलग है क्या? अलग चंबा उसका का? टेस्ट ही लगता है. जैसे आप मुँह में रखोगे, मुँह में पिघल जाता है. वंडरफुल वंडरफुल. आज आपको मैं अच्छा ओके. बैठिए आप, मैंने भी आपको ठीक है. खाना खिलाऊंगा. वाह, बड़ा. इसमें क्या बहुत ज्यादा तेल है, घी है, क्या है? मैंने इसमें ना कड़ी पकौड़े डाले हुए हैं, फर डाला हुआ है, और उसके ऊपर धनिया. I am just going to stir this, but I'm going to feel I made it. सब चीज डाली है इसमें. वाह. द आलू गोभी. आलू गोभी, यस. अभी मैंने आलू गोभी बना लिया. हाँ बिल्कुल. ये मूली खंडा डाला इसमें, मूली खंडा ये चटनी वाली है, बोलिए आप. आप सब चीज देंगे आप. चलो आप ये तो राजस्थानी रखो. Yeah, I'm feeling so hungry looking at this. My God. ये क्या है? ये यहाँ की एक बड़ी फेमस चीज है मैडम जी, गलगल की बनी होती है ये चटनी. गलगल की. इसको जब आप खाओगे तो आप थोड़ा पूछोगे कि कैसे बनाएंगे. But what I also see is the Chennai Super Kings all eating शर्मा जी के हाथ का खाना. वाह. So this looks like a dal. This is rajma. This is curry. And this is some chutney, galgal chutney, mealy chawal. I think the sabzis are on the way. It's a simple desi dhaba. The smell is wonderful. अब हम आ गए हैं मसरूर टेम्पल पे. Beautiful. So you see this wonderful temple which was made by the Pandavas when they were in hiding. वो लोग यहाँ छुपे हुए थे
और एग्जाइल में थे तभी ये टेम्पल बना हुआ है. इसका आर्किटेक्चर बहुत ही बढ़िया है. इट्स समथिंग वेरी यूनिक. सो it's wonderful to watch this. Also very peaceful, very quiet, very serene. पता चला कि बाद में बहुत साल बाद में किसी ने आकर राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्तियाँ भी रख दी. तो now people come here even for religious purposes, but it's worth seeing. कहा जाता है कि पांडवों ने ये टेम्पल बनाया था जब वो यहाँ छिपे थे कांगड़ा में. बट अनफॉर्चुनेटली उनको पहचाना गया और उन्हें यहाँ से छोड़कर भाग जाना पड़ा. तो ये टेम्पल इनकम्प्लीट रहा है. दिस टेम्पल इज एक्चुअली अ क्लस्टर ऑफ 15 टेम्पल्स carved out of a single rock and built around a central shrine. Really a marvel of architecture. This temple is a beautiful example of the classical Indian architecture. The serenity of the 8th century rock-cut temple can only be felt and not explained. 1905 के earthquake में जो हिमाचल प्रदेश में हुआ था, उसने ये टेम्पल को काफ़ी नुकसान पहुंचाया. But the restoration is on, it's going on slowly and steadily. The temple complex was carved out of the natural sandstone rock. In some places, the rock is naturally very hard, which would have been difficult to carve. But it also is the reason why the intricate carvings of it have been preserved for over 1,000 years. Welcome to the beautiful Kangra Fort. This was built by the Rajputs of the Katoj dynasty in 4300 BC. આ હિમાચલનો સૌથી મોટો કિલ્લો છે અને ઇન્ડિયાનો કદાચ સૌથી જૂનો પણ. अकबर के बेटे जहांगीर ने ये फोर्ट चंबा के राजा से जीता था सन 1620 में. ऑलमोस्ट एक सेंचुरी की लड़ाइयाँ और जद्दोजहद के बाद राजा संसार चंद द सेकंड ने ये फोर्ट जीत के वापस हासिल कर लिया. ये फोर्ट काफ़ी सालों तक कटोच परिवार में ही रहा और फाइनली 1846 में ब्रिटिशर्स ने इस पर कब्जा कर लिया. इन इट्स लाइफ ऑलमोस्ट ऑल रूलर्स हु हैव वॉक्ड द लैंड ऑफ इंडिया हैव ट्राइड टू टेक द फोर्ट अंडर देयर कंट्रोल. इट वॉज सेड, he who holds the Kangra fort holds the hills. Just keeps getting better and better. Oh my God, it's so beautiful. You know, it's like food. If I tell you the food is good, you're only going to listen and feel that, but you will actually know the taste only if you eat it. So this is exactly like that. If you actually see it, you'll realize how beautiful this is. So look at the mountains, you know, right on one side, that's a whole mountain range of Dhauladhar. And this side is the sunset. It's just too surreal. The time is about 5:23 for the sunset. So I'm waiting for the sun to go down. And this is just the perfect point for me to see the sunset. See those parrots? I can hear them screeching behind me. And the sun is going down. Look at that. What a perfect ending to a beautiful day. See you soon in the next episode at my next location in Himachal.